Assalamu alaikum, and this is a Cambridge paper May June 2022. This is paper 1-2. This is question number 1. The topic is binomial expansion. The coefficient of x4 in the expansion of this is equal to the coefficient of x square in the expansion of this. First we will find the coefficient of x4 from this by this formula. 3 plus x raised to power 5. We will use this formula to find the specific term n c r a raised to power n minus r b raised to power r. This formula will be used to find the specific term. Now in your question, a is 3, b is x and n is this. We will put these values here. 5 c r 3 raised to power 5 minus r x raised to power r. Now 5 c 4 3 raised to power 1 x raised to power 4 because r is equal to 4, because we have to find coefficient of x4. We will put here 4 in place of r. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 5c4 होता है 5, दिस इज 5 और दिस इज 3, this is x4. The coefficient of x4 is clearly 15 x4. This is the coefficient of x4, 15. So we will write coefficient of x4 is 15. Now we will expand this. 2x plus a over x raised to power 6. Again we will use the same formula to find the specific term. 6cr. A is this in this question, and in this part a is this and b is this. 6cr 2x raised to power 6 minus r and b is a over x, इसकी पावर है r. Now we will use indices rule. 6cr और ये पावर 6 माइनस 2 पे भी होगी और x पे भी होगी. 2 की पावर है 6 माइनस r, x रेज्ड टू पावर आल्सो 6 माइनस r. a raised to power r and x raised to power r. Now we will collect the powers of r. This becomes 6cr 2 raised to power 6 minus r. यह है x की पावर 6 माइनस r और नीचे जो x की पावर r जो ऊपर आ जाएगी माइनस r हो जाएगी और यहाँ पे है a की पावर r. ओके. नो 6cr 2 की पावर 6 माइनस r x रेज पावर ये 6 माइनस 2r a की पावर r. अब हमने ये 6 माइनस 2r को 2 के इक्वल रखना है क्योंकि हम ये x की पावर कोएफिशिएंट ऑफ x स्केयर फाइंड करना है यहाँ से. तो 6 माइनस 2r को 2 रखेंगे तो यहाँ x के ऊपर 2 आएगा. फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड r. 2r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2. अब हमारा r जो है वो 2 आ गया है तो यहाँ पुट करेंगे 6c 2 के ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 2 वो 4 हो जाएगा. x के ऊपर 6 माइनस 2r को हमने 2 रखा तो x के ऊपर 2 आ जाएगा, a के ऊपर भी 2 आ जाएगा. इसका मतलब हमने r की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पुट की है
तो 6c2 जो है वो कैलकुलेटर आपको 15 देगा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 is 16, this is a square, this is x square. Now the coefficient of x square is this. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 240 a square x square. Now the coefficient of x square is this. Coefficient of x square is 240 a square. Now it is given in the question that coefficient of x square and coefficient of x4 are equal. So this and this are equal. We have to find the value of a. So 240 a square is equal to 15. A square is equal to 15 over 240. जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 240, 1 ओवर 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 16। नो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 4। बट द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव कांस्टेंट ए, तो पॉजिटिव वैल्यू इज 1 over 4. This is the final answer. This question is from the arithmetic and geometric progression. In this question, the second and third term of geometric progression are 10 and 8 respectively. Find the sum to infinity. This is, first of all, this is the formula to find the sum to infinity. A over 1 minus r. We need a and r, and we'll put these two values here. We will get s infinity. The second and third term of GP are this and this. Second term होती है AR, GP की geometric progression की second term होती है AR, that is given 10. And the third term is 8. Third term is a r square, that is 8. From these two equations, we will find the values of a and r. We will solve these two equations simultaneously. अब हम डिवाइड कर देंगे इनको, ए आर स्क्वायर ओवर ए आर, इसको इस पर डिवाइड किया है तो इसको 8 over 10 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल 8 over 10, इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज 4 over 5। हमारा r 4 over 5 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी में पुट कर लें r की वैल्यू 4 over 5, तो हमारे पास a आ जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो a r इज 4 over 5 इज इक्वल टू 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 10 इंटू 5 over 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 over 2। दिस इज a एंड दिस इज r। नो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास s इन्फिनिटी आ जाएगा। a इज़ 25 over 2 divided by r is 4 over 5, 1 minus 4 over 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 minus 4 over 5 एलसीएम मेथड से 5 minus 4 1 over 5 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 over 2 मल्टीप्लाई, ये 5 ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 125 over 2, that is 62.5. This is s infinity. So our final answer is s infinity is
62.5। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ग्रेडियंट गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है, और जिस पॉइंट में से कर्व पास करता है वो पॉइंट भी दिया हुआ है। तो उसको कैसे करना है ये देखें। डी वाई ओवर डी एक्स 4x माइनस 7 रेज टू पावर 1 ओवर 2 माइनस 4 x रेज टू पावर नेगेटिव 1 ओवर 2। फर्स्ट स्टेप इज डी वाई लेफ्ट पे रहेगा, ये डी एक्स राइट पे चला जाएगा। 4x माइनस 7 1 ओवर 2 माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2। यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, डी एक्स इधर आ गया। इसको बोलते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। लेफ्ट पे डी वाई है, राइट पे डी एक्स। अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग ईच साइड। डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ this right hand side 3 into 4x minus 7 1 over 2 minus 4x power minus 1 over 2 dx. This means that we are integrating left side with respect to y, right side with respect to x. यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के आगे कोई फंक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। इसका मतलब कि हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आएगा y। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3 मल्टीपल है इस टर्म के साथ, 3 ऐसे ही रहेगा। हमने इंटीग्रेट करना है इसको 4x माइनस 7 पावर में 1 ऐड कर दें और यही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख दें 1 ओवर 2 प्लस 1। बट 4x माइनस 7 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, इस चीज़ का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। 4 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये इंटीग्रेट हो चुका है। नेक्स्ट टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, 4 वैसे ही रहेगा। x की पावर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में यही लिख दें, ओके, प्लस c। सिंस this is indefinite integral on the right hand side and there must be a c. C is the constant of integration. Now we will simplify it. 4x minus 7 power 3 over 2. This is also 3 over 2 into 4 minus 4 x raised to 1 over 2 over 1 over 2 plus c. This become cancel out. This is also cancel out. Y is equal to 4x minus 7 और 3 over 2 2 minus 8 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज पर 1 over 2 प्लस c। अब हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है, जो कर्व जिसमें से पास करता है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। पॉइंट इज 4 5 over 2। y की जगह पे 5 over 2 पुट कर देंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे। दिस विल बिकम 5 over 2 4 into 4 minus 7 power 3 over 2 over 2 minus 8 4 1 over 2 plus c. This is 5 over 2
16 minus 7, 16, 4 4s are 16 minus 7, that is 9, power 3 over 2 divided by 2 minus 8, this is 4 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस c, 5 over 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल रेस्ट पावर 3 over 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 प्लस c, cancel out, 5 over 2 is equal to, this is 27 over 2 minus 16 प्लस c, ये सिंप्लीफाई करके ये आपके पास c आ जाता है 5। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर लेंगे, c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 3 over 2 over 2 minus 8x raised to power 1 over 2 plus 5. This is the value of c. Hence, this is the required equation of the curve. And this question is from arithmetic and geometric progression. This first part is of arithmetic progression. First three terms given है, we have to find the value of constant k. These three terms are consecutive three terms, first, second and third term. First term is k, second is 6k, third is k plus 6. This is first, second, third. In arithmetic progression, common difference between any two consecutive terms will be same. This means that 6k सेकेंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं k प्लस 6 माइनस 6k, ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, सिंप्लीफाई करें 5k माइनस 5k प्लस 6, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10k माइनस 5k राइट लेफ्ट पे आ जाएगा, 10k इज इक्वल टू 6, और यहाँ से k इज इक्वल टू 3 over 5 और 0.6 भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नो सेकंड पार्ट बी में हमने सम फाइंड करना है फर्स्ट 30 टर्म्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फार्मूला फॉर सम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फार्मूला होता है n over 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम ऊपर से हेल्प लेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी, k है, सेकेंड टर्म 6k है, थर्ड टर्म 6 प्लस k प्लस 6 है, k हमारे पास है 3 over 5, तो ये टर्म आ जाएगी 3 over 5, ये आ जाएगी 6 इंटू 3 over 5, ये आ जाएगी 3 over 5 प्लस 6। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी 3 over 5, ये आ जाएगी 18 over 5, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी एलसीएम से 33 over 5। नो फर्स्ट टर्म इज a 3 over 5, अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म,
को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 30 टर्म्स है, n इज 30 एंड कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेते हैं। d इज 18.5 दिस माइनस दिस 3/5, दिस बिकम्स 15/5, ये आ जाएगा 3। तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे एस एन। We have to find sum of 30 terms, so we will write S30, sum of 30 terms. N is 30, 30/2 within bracket 2 into A is this 3/5 plus N minus 1 means 30 minus 1 into D is this 3. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 within bracket 6/5 plus this becomes 29, 3 are 87. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे we will get 1323. This is the sum of 30 terms.